So in our previous class we have learnt about associativity properties of chapter 1 of integers, and I had also given a homework in which you have to show the associative properties for 3 numbers. Okay, so let's check it out. Before going to this solution, I want to tell you that the solution I am getting from you are not the way we should write. Okay, so I'm going to show you how we should write a solution, this kind of solution, in our notebook and also in our exams. Okay, so watch carefully. So the question was, we have to show the associative property for these 3 numbers, -1/3, 2 and 1 2/3. This is a mixed fraction. We will convert it in the rational number form or fraction form. Okay, so we convert it here in the fraction form. Now I have to see these 3 numbers whether it shows the associative properties or not. So first we will check it in the addition operation. Okay, so let's take these 2 numbers. I have to show that the associative property holds for this or not. So if I write this, okay, if it is equal, then it is true for it is true. That is, if it is equal, then this means that it holds associative property. Okay, so we will check by taking the left hand side and right hand side one by one. So first I have taken a left hand side here. So here I have written -1/3 plus, and I have to add these 2 numbers. So this will become 6 plus 5/3. I have taken an LCM here, general mathematic operation here perform, and then we have 10/3 as a answer. Then we will check the RHS of this question, this equation. Then the RHS will also comes to the same result. Okay, then we said that LHS is equals to RHS as I have written here. So we will say that hence the addition is associative. Okay, this is the way you should prove a question. If it is a associative, it is a commutative or a closure property. Okay, this is the way of writing. This is how you supposed to write. Okay, so the next three is subtraction, multiplication and division. So I have given you a hint of here how to write this, and you should write these three in your homework copy or in your as your homework. Okay, if you have not written in this way, you are requested to write it in this way. Okay, so in our previous class we have learnt about the associative property, and I had also told you that we will learn the additive identities and the multiplicative identities in our next class. So we will start our today's discussion with the additive identity of rational numbers. Okay, so this is situated, this is in the at the page number 10. Okay, now comes to the additive identity of the rational number. So what do we mean by additive identity? So the additive identity simply means that if a number is added, if a sum number is added to a number and the sum remains unchanged. Okay, suppose मैं यहाँ पे 3 में मैं ऐसा नंबर ऐड करूँ कि मुझे उसका सम जो है वो वापस 3 मिल जाए, तो मुझे क्या ऐड करना होगा? ठीक, तो अगर मैं एक ऐसा नंबर ऐड करूँ कि उसको सम करने पे जो नंबर है उसका सम करने पे नंबर से वो ही रहे, तो हम बोलेंगे कि वो एडिटिव आइडेंटिटी है. ठीक है, यहाँ पे एडिटिव है मतलब कि हम ऐड कर रहे हैं. ठीक है, बाद में हम देखेंगे मल्टीप्लिकेटिव, उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, ओके. सो अगर मैं 3 में मेरे को कुछ ऐड करना है
और वो ऐड इस तरह होना चाहिए कि उसका जो सम है ऐड करने पे मेरे को 3 ही मिलना चाहिए। तो वो नंबर क्या होना चाहिए? तो वो नंबर होना चाहिए 0, इज़न्ट इट? 3 में अगर मैं 0 ऐड करूँगा तो मुझे 3 ही मिलेगा। और अगर मैं 0 को मैं ऐड करता हूँ 3 तो भी मेरे को 3 मिल रहा है। ओके, दिस शोज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। Okay, let's take another example. If I have to add a number in 6, in which if I perform the sum operation of our addition operation, this sum remains 6, then what will be the number? So the number will also again, there is 0 here. Similarly, अगर मेरे को -2 में कोई सा नंबर ऐड करना है कि -2 ही मिले तो वो क्या होगा? वो फिर 0 होगा। अब हम, ये तो था नेचुरल नंबर्स, ये भी होल नंबर्स या नेचुरल नंबर्स बोल सकते हैं इसमें, ठीक है। अब हम यहाँ पे हमने देख लिया इंटीजर्स के बारे में कि इंटीजर्स में अगर हमको कोई एडिटिव आइडेंटिटी देखना है तो क्या होगा। तो अगर मैं कोई सा भी नंबर इंटीजर में ऐड करना है कि वापस मेरे को वही सेम नंबर मिले तो मैं क्या करूँगा? तो मैंने देखा कि 0 ऐड करने पे मेरे को सेम नंबर मिल रहा है। अब अगर हम बात करते हैं रैशनल नंबर में, तो रैशनल नंबर में, इस रैशनल नंबर में मैं क्या ऐड करूँ कि मेरे को वापस सेम रैशनल नंबर मिल जाए, मतलब कि सम रिमेन अनचेंज्ड। ओके, वी हैव टू ऐड अ नंबर in such way that the total sum of the equation remains unchanged. That will be called its additive identity. Okay, so we are learning here the additive identity of rational numbers. So this is a rational numbers, and so what should we write here? That the sum remains this -4/5. The answer is I should write 0 here. Okay, so what can we say? That we can say that the 0 is the additive identity for whole numbers, for natural number, for whole numbers, for integers and for rational numbers. So I will write it here as that. Thus we can say that 0 is the additive identity for whole numbers, integers and rational number. Okay, so this was about additive identity. Now we will move towards our next topic, which is a multiplicative identity of rational number. Okay, so I have here 3 numbers written. This is a whole number or natural number, this is an integer, and at last we have rational numbers. So we will first come to the whole numbers. Okay, so multiplicative identity means that you have to multiply a number in a number such that the multiplication of both numbers gives you 1. Okay, मतलब कि मेरे को 6 में ऐसा नंबर को मल्टीप्लाई करना है कि मेरे को मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो रिज़ल्ट है उसका वो मेरे को 1 मिलेगा। तो वो अब मेरे को 6 में क्या है मल्टीप्लाई करूँ मैं कि मेरे को उसका जो रिज़ल्ट है वो 1 मिले। सॉरी वो तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा। सॉरी, मैंने यहाँ पे गलत बताया कुछ। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब है कि कोई भी नंबर को हमको मल्टीप्लाई करने पे अगर मेरे को सेम नंबर मिल रहा है तो वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा। मतलब जैसे हमने यहाँ पे क्या करा था, हमने एडिटिव आइडेंटिटी में क्या करा था कि कोई से भी नंबर में ऐड करने पे अगर हमको सेम नंबर मिल रहा है तो हम उसको एडिटिव आइडेंटिटी बोलेंगे। यहाँ सिमिलरली यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम मल्टीप्लाई करने पे उस नंबर को एक नंबर पे अगर मल्टीप्लाई करते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से, और अगर हमको सेम नंबर मिलता है तो हम उसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलेंगे। ओके,
तो यहाँ पे 6 आएगा. सॉरी, आई एम सॉरी फॉर देट, आई गेट लिटिल कन्फ्यूज. सो अगर मेरे को 6 में मल्टीप्लाई करना है, मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे मल्टीप्लिकेशन करने के बाद मुझे वापस रिज़ल्ट सेम ही मिल रहा है? तो वो क्या होगा, कौन सा नंबर होगा? तो वो नंबर अगर हम देखेंगे 6 टाइम्स क्या इक्वल्स टू 6, तो आंसर विल बी 1. ओके, सो देन वे मूव टू द इंटीजर्स पार्ट. दैन इन इंटीजर्स पार्ट, what should be written here, or what integer should I multiply with this integer so that the multiplication of these two numbers remains same, and answer I am getting here, to the answer I am getting here. So -3 में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे को -3 मिले, तो वो उसका आंसर फिर से 1 होगा. सिमिलरली अगर मैं रेशनल नंबर की बात करता हूँ, तो मैं इस रेशनल नंबर में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे को वापस सेम रेशनल नंबर मिल जाए, तो अगेन इसका आंसर फिर से 1. ठीक है, तो अब मैं इस पे क्या कंक्लूज़न लिख सकता हूँ? तो इसका कंक्लूज़न मैं ये लिख सकता हूँ, thus 1 is the multiplicative identity for rational numbers okay. So we have learnt about the additive identity. We have also learnt about that about the multiplicative identity. Now we will move towards our next topic, which is additive inverse of a number. Okay, additive inverse simply means that you have to add a numbers in a number which the sum gives you 0. ओके, मतलब कि कोई से भी एक नंबर में सिंपली मेरे को ऐड करना है एक ऐसा नंबर कि जिसको मेरे को ऐड करने पे उनका रिज़ल्ट जो है वो 0 मिलेगा. ठीक है, तो अगर मैं बात करूँगा 1 की, तो अगर मैं नेगेटिव ऑफ 1 की बात करूँगा, तो नेगेटिव ऑफ 1 क्या होगा? नेगेटिव ऑफ 1 होगा -1. फिर मैं अगर बात करता हूँ नेगेटिव ऑफ -1, तो नेगेटिव ऑफ -1 क्या होगा? मतलब जो नंबर है उसके माइनस लगाना उसके आगे सिंपली. तो मेरे पास यहाँ पे नंबर है -1, इसके आगे में एक माइनस और लगाना है मेरे को, तो ये माइनस माइनस +1 हो जाएगा. अब मैं रेशनल नंबर की बात करता हूँ, ये तो मेरा होल नंबर हुआ, ये मेरा इंटीजर हुआ, ये मेरा रेशनल नंबर हुआ. रेशनल नंबर की बात करता हूँ कि नेगेटिव ऑफ रेशनल नंबर क्या होगा? जो 4/5 है, तो मेरे को सिंपली उसके आगे माइनस लगाना है और -4/5. ठीक है, अब हम बात कर रहे थे एडिटिव इन्वर्स के बारे में. ठीक है, तो एडिटिव इन्वर्स का मैंने अभी आपको बताया कि एक नंबर में एक ऐसा नंबर, कोई से भी एक नंबर में ऐसा नंबर ऐड करना है कि उनका सम जो है वो मेरे को 0 मिले. सपोज़ अगर मेरे पास पहला एग्जांपल मैं लेता हूँ होल नंबर्स का इसी में, कि अब मैं 1 में ऐसा क्या ऐड करूँ कि मेरे को 0 मिले, तो वो क्या होगा? वो होगा -1. ठीक है, से अगर मैं होल नंबर्स की, ये होल नंबर्स की बात करें, अब मैं इंटीजर्स की बात करता हूँ कि मैं इंटीजर ले लें -5, तो मैं -5 में ऐसा क्या ऐड करूँगा कि मेरे को आंसर 0 मिलेगा? तो वो होगा +5. ठीक है, एनी डाउट्स? सो this is about the whole number, this is about the integers, but we are learning about the rational number, so we should take a rational numbers also. So I have taken a rational number here, 4/5. okay, this is the simple as this. So what number should I add here to get this sum 0? So this will also be about -4/5. okay, so if you observe this, we are just writing the negative of this number. okay, we are just writing the negative of the numbers which we are adding. In this one we are adding the negative of 1. okay, in 4/5 we are just adding the negative of 4/5. so we can also say that additive inverse is also the negative of that number.
Okay, so we will write the conclusion here that minus a by b is the additive inverse of a by b and वाइस वर्सा. ठीक है, वाइस वर्सा मतलब है कि इसका उल्टा. अगर मैंने लिखा है माइनस ए बाई बी इज़ द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए बाई बी एंड वाइस वर्सा, तो वाइस वर्सा की जगह क्या आएगा? वाइस वर्सा की जगह ये आएगा कि एंड ए बाई बी इज़ द एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस ए बाई बी. इस दो वर्ड्स का मतलब ये पूरा एक सेंटेंस के बराबर है. ठीक है, तो हमको ये भी मालूम होना चाहिए कि मैथमेटिक्स में लिखना कैसा है. सिर्फ नंबर्स के अलावा भी लिखना भी आना चाहिए. ओके, सो दिस इज़ अबाउट द एडिटिव इनवर्स. इफ़ यू लुक हियर we have add the number. Okay, so that's why it is called additive. Similar to additive identity, we have add a 0 here, which is an identity of course, and here in this additive inverse we have add a multiplicative we have add a negative of a number. That's why it is called additive inverse. Then our next topic is multiplicative inverse. So just like the name suggests, we have to multiply a number so such that the multiplication gives answer 1. Okay, so we are talking about the rational numbers. So I have taken a example here as a rational number is 3 by 5. So what should I multiply this 3 by 5 with to get the answer 1? So the answer should be 5 by 3. Okay, so this will get cancelled and this get cancelled, so I get here 1. I can take another example is 7. What should I multiply with 7 so that I can get answer 1? So the answer will be 1 by 7. Okay, let's take another example of minus 6. Okay, so what should I multiply with minus 6 so that I can get 1 to the, so that then the answer will be I should multiply with minus 1 by 6. How it should get answer, how it should get the answer 1? Okay, we can check here that LHS, just like I told you in your homework, that minus 6 into minus LHS, इसमें LHS नहीं आएगा, ये तो हमने आंसर लिखा है, यहाँ पे हमने प्रूफ नहीं कर रहा है. ठीक है, तो कैसे मैं सिर्फ यहाँ पे बता रहा हूँ कि जो LHS में जो लिखा है वो यहाँ पे उसका सॉल्यूशन क्या है. ये ऐसा है. ठीक है, अब क्या है, माइनस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन है तो मेरे को सिंपली प्लस मिल जाएगा. फिर क्या है, 6 इंटू 1 बाई 6, तो 6 गेट कैंसल्ड एंड आई गेट 1 बाई 6. oh sorry, I get 1 here. Okay, so if we observe this if we observe these 3 example, I can conclude that if I multiply a number with its own reciprocal, okay, 7 is a number and 1 by 7 is the reciprocal of its number. If I multiply a number with its own reciprocal, I can get the result 1. So the multiplicative inverse is also called the reciprocal, which I have written here. So what can I conclude here? I can conclude that therefore b by a is the multiplicative inverse. ओके, इन्वर्स मीन्स उसका उल्टा सीधा. ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मतलब कि मल्टीप्लाई करने पे हमको एक ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करना है कि हमको आंसर 1 मिले, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है. ठीक है, उल्टा मल्टीप्लाई करना उसका. और
रेसिप्रोकल ऑफ ए बाय बी। ठीक है, अगर आप में से किसी को राइटिंग समझ में नहीं आ रही है तो ये पेज नंबर 11 पे लिखा हुआ है विथ bold letters. Okay, I can show here, I can show you, this is written here, b by a is the multiplicative inverse of or reciprocal of a by b. Okay, simply if a by b is my number, then the multiplicative inverse will be b by a or vice versa. Okay, then we will move to distributive property. Okay, we have learnt about the associative property, commutative property, closure property. Now we will move to the distributive property. Okay, suppose I have this question here and I have to solve. How can I solve it? I have solved first the bracket here, because according to the BODMAS rule, which you have already learned in your previous classes, in maybe 4th or 5th or 6th classes. Okay, so first you have to solve the bracket. Then I should write here 2 by 3 bracket will be minus 5 427 upon 35. LCM लेने पे तो 2 by 3 ये होगा मल्टीप्लाई होगा माइनस का 13 अपॉन 35. ओके, तो आंसर में खुला 13 to the 26, 35 times 3 gives me 105 with a negative sign here. ओके, ठीक है, ये तो हमने सिंपल सॉल्व किया. अब जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज. जो प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, वो सिंपली हमारा ना टाइम बचाती है. कोई से भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो प्रॉपर्टीज़ होती है, अगर हमको प्रॉपर्टीज़ याद है तो हमारा जो टाइम है क्वेश्चन सॉल्व करने में वो कम लगता है. कैसे कम लगता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कर देगा कि ये जो क्वेश्चन था यहाँ पे, जैसे ये लिखा हुआ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा कि ये जो 2 by 3 है, इसका 2 by 3 है, इसका पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि पहले यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन साइन लिखा है. ठीक है, ब्रैकेट लिखा हुआ है, यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है, मतलब कि दोनों यहाँ पे ये कॉमन इन दोनों में. ब्रैकेट हम सिंपली कब लगाते हैं कि जब कोई से भी प्लस साइन के साथ में 2 डिजिट होगी तो हम कॉमन निकालते हैं उसके साथ में, है ना. जैसे आपने अपनी जूनियर पिछली क्लासेस में पढ़ चुके होंगे कि जैसे कि एक्स वाई अलजेब्रा आप पहले पढ़ चुके हैं, और एक्स स्क्वायर वाई, तो यहाँ से मैं एक्स कॉमन निकाल एक्स वाई स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ से मैं एक्स वाई कॉमन निकाल देता हूँ, तो मेरे को क्या मिलता है 1 + x वाई. ठीक है, ऐसा कुछ आपने पढ़ा होगा. अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, हम फिर वापस पढ़ लेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये होगा कि 2 by 3 पे मल्टीप्लाई साइन है, मल्टीप्लाई साइन के साथ बाद में ब्रैकेट है और ब्रैकेट के अंदर एक प्लस साइन है. तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा, तो जो बाहर लिखा है ब्रैकेट के आगे वो मल्टीप्लाई साइन है, तो पहले मल्टीप्लाई होगा इस नंबर के साथ में. तो आई विल राइट इट हियर एज -4 by 5. Then I have a plus sign here, so I will write plus here. Then this 2 by 3 will get multiplied with this number, so the 2 by 3 is multiplied by 1 by 5. Okay, so 2 by 3 minus 4 to the 8, 5 15 plus 2 times 5 to the 15, minus 8 2 gives me -6 by 15. Okay, so -6 by 15. सॉरी, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन गलत लिख दिया है. यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे भी 7 है. ठीक है, तो यहाँ पे भी 7 आएगा. ओके ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा 21. ओके, तो यहाँ मेरे को मिलेगा इनका एलसीएम लेने पे 105. आप एलसीएम इसका ले लेना. -40 plus 14 gives me -26 upon 105. So same result as the previous one. Okay, तो ये था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ में हम कैसे क्या
क्वेश्चन सोल्व करते। तो एक जनरल वे में कैसे लिखूँ मैं? जनरल वे में मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि हैंस a मल्टीप्लाई बाय b प्लस सी, ए बी सी कोई से भी नंबर हो सकते हैं, ठीक है। a मल्टीप्लाई बाय b प्लस सी इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई बाय b प्लस a मल्टीप्लाई बाय c, ओके। सिमिलरली अगर यहाँ पे प्लस की जगह माइनस हुआ तो a मल्टीप्लाई बाय b माइनस सी इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई बाय b माइनस a मल्टीप्लाई बाय c, ओके। a b c जो है वो है रेशनल नंबर्स हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो ये था जो 4 प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताई उसके बारे में। अब हम जाते हैं हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 कुछ क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, ठीक है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.1 इज स्टेट्स दैट राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ओके। अभी मैंने आपको बताया व्हाट इज़ द एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स आपको लिखना है। तो सबसे पहले जो ये पहला पार्ट है -3/-7, इसको एक जनरल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऊपर भी माइनस है, नीचे भी माइनस है। हमको मालूम है कि माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो प्लस हो जाएगा ये, यहाँ पे मैं प्लस लिखूँ ना लिखूँ बात एक ही है, ठीक है। माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हुआ प्लस हुआ, या फिर माइनस दोनों की तरफ से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में से हमने कॉमन ले लिया। आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। 3/7, ठीक है। अब मेरे को 3/7 का एडिटिव इनवर्स लिखना है, तो क्या होगा? द एडिटिव इनवर्स ऑफ 3/7 इज -3/7। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा कि एस 3/7 with addition of -3/7, that is the additive inverse, gives me 0, okay. So additive inverse of 3/7 is -3/7, okay. Then we have 4/-5। 4/5 -5 को मैं क्या लिख सकता हूँ? -4/5 सिंपली इस तरह से भी लिख सकता हूँ, ठीक है। नीचे लिखो ऊपर लिखो माइनस का बात एक ही है, ठीक है। तो मेरे को लिखना है -4/5 का एडिटिव इनवर्स। सो द एडिटिव इनवर्स ऑफ -4/5 इज 4/5। ऐसा क्यों? बिकॉज एज -4/5 which is our number adds up with 4/5 gives you 0. That is the condition of additive inverse. एडिटिव इनवर्स में ऐड करने पे आपको 0 मिलना चाहिए, तभी वो एडिटिव इनवर्स होता है। इनवर्स, ठीक है, नॉट एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। यहाँ पे एडिटिव इनवर्स की बात हो रही थी। तो ये मैंने आपको बताया है ए और बी पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का। इसकी जो सी डी ई पार्ट है वो आपके लिए होमवर्क है, सी डी ई, ओके। मैं आपको जो आज पीडीएफ शेयर करूँगा उसमें मैं टिक लगा के दूँगा, ठीक है। तो जिस पे मैंने टिक लगा रखे हैं वो आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो देन वी विल मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 2. So it states that find the multiplicative inverse of each of the following numbers. Okay, we have to find the multiplicative inverse. So multiplicative inverse is the number which you should multiply with it, so that the answer we are getting is 1. We will getting is 1. Okay, so -7/9 में मेरे को ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है कि मेरे को आंसर 1 मिले। तो क्या होगा? सो द -7/9 में मेरे को ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है कि मेरे को 1 मिलेगा। तो क्या होगा? तो वो होगा, अगर मैं 9/7 कर देता हूँ, जैसा कि मैंने बताया था आपको, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होते हैं सिंपली रेसिप्रोकल होते हैं। तो रेसिप्रोकल मैंने कर दिया -7/9 का 9/7, लेकिन
मैंने रेसिप्रोकल तो सिर्फ 7/9 का किया है, -7/9 का थोड़ा ना किया है। तो -7/9 का करना होगा तो मेरे को यहाँ पे माइनस साइन भी लिखना होगा, है ना। तो यहाँ पे -9 get cancel here and 7 get cancel here, this minus become minus plus, okay, so I get 1 here। एक बार फिर मैं आपको देख लेता हूँ, लिख देता हूँ। फिर अब क्या होगा इसका, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स of -7/9 is 9/7, 9/7 minus 9/7, okay, because -7/9 multiplied by -9/7 gives you 1, okay। 1 मिलना चाहिए, -1 नहीं मिलना चाहिए, आइडेंटिटी नहीं, वो इन्वर्स नहीं बोलेगा फिर उसको। फिर इसी क्वेश्चन का है फोर्थ पार्ट, 1/3 मल्टीप्लाई विथ, वी हैव टू फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ दिस नंबर, ओके। तो अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो 1/3 1 और मल्टीप्लाई विथ 4/7। तो पहले सबसे पहले हम इसको हमको सिंपल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। सिंपल फॉर्म में मतलब इसका मल्टीप्लाई करने के बाद, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं इनको हम 4/21, ओके। नाउ वी हैव टू फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4/21। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज सिंपली द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर। सो द मल्टीप्लिकेटिव, divide this, okay, so you should not get confused। so the multiplicative inverse of 4/21 is 21/4। 21/4 अगर मैं कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, अब मेरे को माइनस लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए यहाँ पे। अगर मैं माइनस लिखूंगा तो क्या होगा, अगर मैंने यहाँ पे माइनस लिख दिया, ठीक है, तो क्या होगा 4/21 मल्टीप्लाई बाय -21/4 क्या होगा, 4 4 21 21 क्या मिला मेरे को, -1। तो माइनस का आंसर अगर मिलता है तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है क्या, वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे माइनस साइन नहीं आएगा। इसलिए द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 4/21 इज 21/4 बिकॉज 4/21 gets multiplied by with 21/4 gives you 1, okay। सो ये था A और 4D पार्ट। आपके लिए जो होमवर्क रहेगा वो है B, C और E पार्ट, ओके। सो ये था आज हमारी क्लास जिसमें हमने एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में जाना। फर्स्ट वी हैव लर्नड अबाउट द एडिटिव आइडेंटिटी, then we have learned about the multiplicative identity, then we come to know about the additive inverse, and then at last we have come to know about the multiplicative inverse, okay। then we have known the first property, or I should say the fourth property after the closure, associative and commutative property, that is the distributive property। Then we move towards our first exercise, which is 1.1, and we did some questions, question number 1 and 2. So the remaining I have given you a homework, okay। So that is for today's, that is all for today's। We will meet you in the next class, okay। So thank you very much and goodbye।